میں نسیم زرناس آپ سبوں کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں۔ سب سے پہلے خدا باپ کا شکر کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کرے۔ گواہی ٹیم کا پاسٹر سرفراز ولیم کا سب جو ہے یہاں کی ساری ٹیم کے لیے خدا ان سے برکت چاہتے ہیں۔ تو آئیے خدا کے کلام کو میرے ساتھ بائبل مقدس، میرے عزیزو بائبل مقدس جو خدا کا زندہ کلام ہے اور اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام، اس کو پڑھنے والے، سننے والے، اس پر عمل کرنے والے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ آئیے تو بائبل مقدس میں جو پہلی کتاب ہے پیدائش کی کتاب، اس کے پہلے باب کو، اس کی پہلی آیت کو میں آپ کے لیے پڑھتی ہوں۔ خداوند نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤ پر اندھیرا تھا۔ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا اور روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ خدا نے روشنی کو تو دن کہا، اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جہاں پر خدا کی کثرت کی برکت ہو۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو یہاں میں نے تھوڑا آپ کے لیے پڑھا ہے وقت کو دیکھتے ہوئے، تو یہاں جو ہے چھٹے دن تک خدا نے سارا تخلیق کا کام جو پیدائش کی اس پہلے چیپٹر میں تخلیق کا کام ہوا، تو سارا کام ختم کرتے ہوئے خدا نے 7ویں دن کو برکت بخشی، اور 7ویں دن خدا کے آرام کا دن ہے۔ یہاں پر خدا نے ہم نے پڑھا کہ سب کچھ جو تخلیق کیا گیا، جو خاص بات ہے وہ یہ کہ خدا نے کائنات میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی خلق کیا گیا ہے، وہ سب کچھ اپنے منہ کے کلام سے جو ہے اس کو شکل بخشی ہے۔ اور یہی جو عمل ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آخری کتاب، میرے ساتھ یہ بھی حوالہ دیکھ لیجئے، آخری کتاب مکاشفہ کی کتاب، پہلے میں نے آپ کے لیے پہلی کتاب کا پہلا باب پڑھا، اس میں سے بتایا کہ خدا نے کیسے تخلیق کا کام کیا، اور اس کے بعد مکاشفہ کی کتاب میں اس نے کہا 21واں باب 5ویں آیت میں یہاں اس طرح لکھا ہے، اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں، میں الفا اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں، میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جہاں پر خدا کی کثرت کی برکت ہو۔ آمین۔ ہم نے دیکھا کہ یہ جو تخلیق کا کام ہوا پیدائش کے پہلے باب میں، اس کو ختم کیا خدا نے جب، اور 7ویں دن کو برکت بخشی، اور 7واں دن جو خدا کے آرام کا دن ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب ہمیں کیا بتاتی ہے کہ وہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ تو آج جو ہم بات کریں گے، جس پر غور کریں گے کہ وہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے، جو بائبل ہمیں یہاں پر بتا رہی ہے کہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ کوئی ایک وقت میں نہیں، کوئی خاص وقت میں نہیں، بلکہ یہاں جو لفظ ہے بنا دیتا ہوں، ہمیشہ ہی، جب بھی، جس بھی موسم میں، جس بھی وقت، دن کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، ایک بار ہو، 2 بار ہو، کئی بار ہو، بار بار ہو، جب بھی یہ لکھا ہے کہ سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ اور کوئی لسٹ نہیں رکھی آپ کے لیے کہ آپ نے کچھ 5 10 15 20 ہی چیزیں لانی ہیں۔ وہ جو تخلیق ہوا اس کے بارے میں نے اسی لیے وہ پڑھا کہ جو کچھ بھی ہے، اور اگر آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ سب چیزوں میں سب سے پہلے جو ہے کیا کہ سورج چاند ستاروں کو بھی وہ نیا بنا دے گا، نہیں، اب بات یہ ہو رہی کہ سب چیزوں کو،
तो सब में सब कुछ आता है। मतलब ये कि अगर ज़िंदगी में अंधेरे हैं तो उसके पास लाइए, सब चीज़ों को नया बना देगा, वो अंधेरे झट जाएंगे। और यहाँ क्या लिखा कि खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात, और शाम हुई सुबह हुई सो पहला दिन हुआ। वो जुदा कर सकता है, तारीकी को जुदा कर सकता है, और अंधेरों को जो ख़त्म करने की कुदरत उसके पास है। वो एक ऐसी हस्ती है कि जो आपको ये कॉल कर रही है, और उसके कलाम में लिखा है मैं खुदावंद हूँ, मैं कलाम करूँगा और मैं जो कलाम करूँगा वो पूरा होगा और उसके पूरा होने में देर ना होगी। आमीन। तो यहाँ हमने पढ़ा तख्त वाला जो है, जो तख्त पर बैठा हुआ है, उसके पास क्या है? इख्तियार है, उसके पास अथॉरिटी, पावर है। और खालिक वो है, मालिक वो है, क्रिएटर वो है, सब कुछ वो है। कादर मुतली खुदा ने कायनात को जो है क्रिएट किया, कैसे? अपने मुंह के कलाम से शक्ल बख्शी। तो फिर बात भी वो हमें ये आखिरी किताब में सिखा रहा है कि सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। सब जो कुछ भी आपका हो, सब कुछ को नया बना देने की कुदरत उसके पास है। आपके हालातों, आपके ख़ानदानों के मसाइलों, आपकी चीज़ें, आपके घराने, आपकी औलाद, जो कुछ भी आपका है वो सब चीज़ों को नया बना देगा। उसके पास इख्तियार है। और हमें किसी भी बात में, जैसे अभी आज हम देखते हैं कि 29 जून है और एक दिन के बाद हम जुलाई में चले जाएंगे, तो हमें किसी बात की ये फ़िक्र नहीं करनी, इंतज़ार नहीं करना कोई महीना बदल जाएगा, कोई हुकूमत बदल जाएगी तो हमारे हालात बदल जाएंगे। हमारी निगाह खुदा के कलाम पर होनी चाहिए, जो हमें ये बताता है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है वो जो हमने किस पर निगाह लगानी है, किसी लीडर पर नहीं, किसी इख्तियार वाले पर नहीं, किसी हुकूमत पर नहीं, किसी डेट पर नहीं, किसी कैलेंडर पर नहीं। हमने हमारी जो ज़िंदगी का दारोमदार है इस बात पर होना चाहिए कि वो जो कुदरत का खुदा है उसकी कुदरत बड़ी है, जिसने बनाया है। यहाँ पर पैदाइश में हमने देखा सब कुछ जो उसने बनाया और तख्लीक किया उसी ने किया, तो फिर वही करेगा। जिसने तख्लीक किया, कुछ ख़राब हो जाए, कुछ ख़त्म हो जाए, तो वो उसको हम खुदा के कलाम में ला करके हम उसको नया, खुदा के सामने से नया लेकर के जा सकते हैं। कैसे? क्यों? उसके पास इख्तियार है, वो कादर मुतलिक है, उसकी कुदरत बड़ी है, वही रिस्टोर करता है, वही जो है रिक्रिएट करने की कुदरत भी उसके पास है। बहुत से मौजज़े हम देखे हैं हमने, और हम अपनी बाइबल मुक़द्दस में से भी हम सीखते हैं, अपने घरानों, ख़ानदानों में और ख़ुद अपनी अपनी शख्सी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि खुदावंद कैसे मौजज़ात करता है। अंधों को जो है आंखें देने वाला, अंधे से पूछा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूँ? उसने कहा यही कि मैं बीना हो जाऊँ, तो वो बीना हो गया। लंगड़ों को जो पहले जो है जो मफलूज लोग, पहले उसको चारपाई पर उठा कर लाया गया और वो पाँव पर चल कर गए। और इसी तरह से बहुत से मौजज़े हमने देखे कि किस तरह से खुदा का कलाम ज़िंदगियों में काम करता है। कोड़ी ने जब कहा तू चाहे तो मैं पाक साफ़ हो सकता हूँ, तो खुदावंद ने क्या कहा? मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ़ हो जा, तो उसी घड़ी पाक साफ़ हो गया। ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा का कलाम है जो आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। किसी एक बात में नहीं, किसी एक काम में नहीं। ज़िंदगी में कुछ कम हो गया है, ज़िंदगी में कुछ जगहों पर नाकाम हो गए हैं, ज़िंदगी में कुछ ख़राब हो गया है, ज़िंदगी में कुछ छूट गया है, कुछ चला गया है, कुछ तबाह तक हो गया है आपका, तो जिसको आप ये कहें कि कुछ हो नहीं सकता, तो खुदावंद यीशु आपको आवाज़ देकर कहते हैं हो सकता है, हो सकता है। जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। हमें बहुत सारी बातें और हमें मिलती हैं जहाँ पर हमें हमारे दिल को कुव्वत मिलती है, और कुव्वत इस बात में, कैसी बड़ी कुव्वत मिली कि कहाँ जाना है, मसलों को लेके कहाँ जाना है, किसके दर पर जाना है, किससे मदद मांगनी है, उसी से जो कर सकता है। और क्या बताती है बाइबल हमें
کہ वो जो तख्त पर बैठा है, तख्त पर खुदावंद यीशु जो तख्त पर बैठे, उसने कहा कि बाप ने सब कुछ जो है मुझे दे दिया, अब मेरा जो कुछ है वो सब तुम्हारा है। आमीन। जो कुछ खुदावंद यीशु का है वो सब हमारा है। लेकिन कब है? जब हम उसमें शामिल हो जाते हैं। जितने उसमें शामिल हो जाते हैं, जितने उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं, उनको वो उस आसमानी जो है मकाम है उसमें उसको नया शहरी बना देता है, क्योंकि बनाने की कुदरत उसी के पास है। जो खालिक, मालिक, जो क्रिएटर है, सब कुछ वो आवाज़ देता है कि मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। बहुत सारी बीमारियाँ मेरे अज़ीज़ों ऐसी हैं जिनके नाम इतने ख़तरनाक हैं कि हम उनको सुनते ही आदत हो सुनते ही बंदा ख़त्म हो जाता है कि कैसी कैसी बीमारियाँ हैं। तो आज मेरा ईमान है कि जब जब खुदा के कलाम पर हम निगाह रखते हैं, जब जब हम खुदावंद पर भरोसा करते हैं, जब हम उसके तख्त के सामने झुकते हैं, जो उसके सामने झुकते हैं उनको कभी किसी चीज़ की कमी ना होगी। आज खुदा का कलाम जो नस नस बंद हड्डी को गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, हम जब भी ये कलाम सुनते हैं, ये खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। क्यों? क्योंकि ये ज़िंदा है, एक्टिव है। जब भी आप पुकारेंगे तो ये आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। आपकी लाइलाज बीमारियाँ, आपकी कमज़ोरियाँ, बेऔलादी, आपके बॉडी के वो अज़ा जो नकारा हो गया है, जो काम नहीं करते, उनके लिए, जो उनके घराने, उन ज़िंदगियों के लिए जो ये फरमाते हैं कि हमारे बच्चे नाफरमान हैं, हमारे बच्चे जो हैं हमारी सुनते नहीं हैं। तो आइए, नया चाहते हैं कि बच्चे नए हो जाएं, ज़िंदगियां नहीं हो जाएं, जो नहीं हो सका वो हो सके। तो खुदावंद का कलाम आपको ये जो है सिखाता है कि उसके पास आइए, जो ये कॉल करता है कि वो जो तख्त पर बैठा है, वो ये कॉल करता है कि मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। सीखने की, गौर करने की ये बात है, बना देता हूँ हर वक्त में, कोई एक बात में नहीं, हर सब चीज़ों को जो तख्लीक हुई, जो आसमान के नीचे सब कुछ है, क्योंकि कुदरत का खुदा सब कुछ कर सकता है। चरिंद परिंद, हवा पानी, हम सब जानते हैं कि उसके सामने सर झुका लेते हैं, क्योंकि वो माबूदों में बुलंदो बाला है। हालेलुया। तो आइए, कोई भी चीज़ जो ऐसी आपकी चीज़ आपकी ज़िंदगी में हाथों से निकल गई है तो ये मत डरिए। बेवा के बेटे को जानते हैं आप, जिसका बेटा एक ही बेटा था, लेकिन यीशु ने, जिसकी रूह जा चुकी थी, यीशु ने हाथ पकड़ करके उसको बुला लिया। क्यों? वो नया बनाने की कुदरत उसके पास है, रिक्रिएट, रिस्टोर करने की वो कादरे मुतलिक है। लाजर को देखिए कैसे आवाज़ दी, तो लाजर को कहा बाहर आ, क्योंकि वो कर सकता है। तो बार बार यही कहूँगी, हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि जो तख्त पर बैठा है वो सब चीज़ों को नया बना देता है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो मेरे अजीज़ों, हम बात कर रहे थे नया बनाने की। तो नया बनाने की कुदरत उसके पास है जो कादरे मुत्ती खुदा जो ये कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। तो हम उसके बच्चे हैं जो हमें ये कहता है कि मैं हूँ। सिर्फ वही है और कोई है नहीं। एक हवाला आपके साथ पढ़ना चाहूँगी, दूसरा सलातीन उसका 4 बाब, उसकी पहली से 7वीं आयत तक, लेकिन कुछ पढ़ूंगी थोड़ा सा। और अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम जो मेरा शौहर मर गया है, और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावन से डरता था, सो अब कस ख्वाह आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि ग़ुलाम बनाए। अलीशा ने उससे कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे पास तेरे घर में क्या है। तो उसने कहा तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा और कुछ नहीं। तब उसने कहा तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन रियायत ले ले
وہ برتن خالی ہوں اور تھوڑے برتن نہ لینا، پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ عورت، پہلے ہم نے سیکھا ہے، آج ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم خدا کا کلام جو ہمیں تقویت دیتا ہے، جو ہمیں طاقت بخشتا ہے، اس میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم اس کلام کو پڑھ رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ قدرت کا خدا جو اختیار والا ہے، اس کے پاس جو قدرت والا ہے، اس کے پاس سب کچھ کرنے کی قدرت ہے، پاور ہے، اتھارٹی ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ کمزور کو زوراور اور بناتا ہے، بیمار کو شفا میں لے آتا ہے، اور غریبی کو جو ہے دولت مندی سے بدل دیتا ہے، اور جو ہے پستی کو بلندی سے، اور اسی طرح سے بہت ساری باتوں کو ہم خدا کے کلام میں جو ہے پاتے ہیں اسی طرح سے۔ تو یہ غریب عورت کیا ہے، اب آئی ہے، کہاں آئی ہے؟ الیشا کے پاس۔ اس کو پتہ ہے کہ خدا کا بندہ ہے، اور اپنا بھی اس کو پتہ ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ کیا کہہ رہی ہے اپنے منہ سے خود کہ تیرا خادم جو میرا شوہر، وہ خدا سے ڈرنے والا تھا۔ جتنے خدا سے ڈرتے ہیں، خداوند کا کرم ان کے اوپر ہے، خداوند کی نگاہ ان کے اوپر ہے۔ اور اس نے کہا کہ تو جانتا ہے کہ ہم جو ہے، اب اس نے کہا کہ میرا شوہر مر گیا ہے اور قرض خواہ تنگ کر رہے ہیں، میرے دونوں بیٹوں کو لے جانا چاہتے ہیں اور ان کو ڈرا رہے ہیں، ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ان کو غلام بنا لیں گے۔ تو وہ آئی ہے روتی ہوئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ خدا کے کلام میں الیشا نے اس سے پوچھا کہ میں تیرے لیے کیا کروں، اور مجھے بتا کہ تیرے پاس تیرے گھر میں کیا ہے۔ تو اس نے کہا تیری بندی کے پاس کیا ہے، تیل جو ہے وہ تھوڑا سا تیل، ایک پیالہ تیل موجود ہے۔ تو پھر اس نے، الیشا نے جب اس کو بتایا کیا کرنا ہے، تو لکھا ہے کہ برتن خالی ہوں۔ اور جب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے جب وہ برتن بھر گئے، 5ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، سو وہ اس کے پاس سے گئی اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا اور اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ انڈیلتی جاتی تھی۔ جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے پاس ایک اور برتن لا۔ اس نے اس سے کہا کہ اور تو کوئی برتن رہا نہیں، تب تیل موقوف ہو گیا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پڑھا کہ وہ سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے۔ غریب، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ غریب خدا کے تخت کے سامنے آئے گا تو غریب نہ رہے گا، کمزور آئے گا تو زور پائے گا، دکھی آئے گا تو خوشی پائے گا، لاچار آئے گا تو چل کر جائے گا، اور مفلوج اور اسی طرح سے بے اولاد آئیں گے تو اس سے اپنی خوشیاں پوری لے کر کے جائیں گے۔ بیماروں کو، ایسی ہم نے بیماریاں دیکھی اور گواہی روز سنتے ہیں، اور ہم اپنے اپنے گھرانوں خاندانوں میں، اپنی شخصی زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند کس طرح، جب تک عزیزو ہم خدا کو جو ہے جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، خداوند یسوع کو چھوئیں گے نہیں، تو ہمیں بھی ایسے معجزوں سے ہم جو ہے دور ہی رہیں گے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو معجزے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے جو ہے ایسے ہی، ان کو وہ جانتے نہیں ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ خدا کا کلام کر سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس عورت نے کیا کیا، اس نے جب خادم نے کہا کہ برتن خالی ہونے چاہیے، یہ نہ ہو کہ بعد میں یہ کہے کہ پہلے سے اس میں کچھ موجود تھا۔ بالکل خالی برتن تھے، اور تیل کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے تیل نکلتا ہے، لیکن یہ خادم کے منہ سے نکلا ہوا کلام، اور یہ تیل کہاں سے آیا؟ آسمان سے آیا۔ پھر اس کے پاس جتنے بھی وہ برتن اپنے آس پڑوس سے لے کر کے آئی، وہ اور اس کے بیٹوں نے جب چاہا کہ وہ بھر جائیں تو ایسا ہی ہوا، اور وہ جب تک وہ برتن ختم نہ ہوئے تب تک تیل جو ہے آتا رہا، اور خدا کے بندہ نے اس کو برکت دی۔ اس عورت نے یہ معجزہ کیسے لیا؟ یہ معجزوں کو جب بھی لینا ہے، آپ نے پہلے آپ کی زندگی میں معجزہ ہوا ہے یا آس پڑوس میں گواہی کے طور پر سننے سے خدا کے کلام کو، پہلے پچھلے معجزوں کو دیکھنا ہے، یاد کرنا ہے کہ خدا کی قدرت کیا کیا کر سکتی ہے۔ تو اس عورت نے کیا کیا؟ الیشا کی اس کے منہ سے نکلے ہوئے کلام کو اور اپنی
जो गरीबी थी, पस्ती, अपने हालात को बीच में नहीं लाई। इसने क्या किया कि उसकी बात पर यकीन कर लिया कि जो ये अपनी अक्ल को बंद कर लिया। जब मौजज़ा तभी होगा अपनी अक्ल को बंद करके, अपने आप को पीछे करके, खुदा के कलाम पर भरोसा करके। यही कि वो जो तख्त पर बैठा है उसका वादा है कि मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। तो गरीबी को जो है बिल्कुल बदल कर क्या कर दिया, उसको जो था दौलतमंद बना दिया। तेल उसको मिल गया और उसने बेच करके अपने और अपने बेटों का, पहले तो उसने कर्ज अदा किया, फिर अपने और अपने बेटों के लिए जो ज़िंदगी की ज़रूरियात थी अपना गुज़र बसर उससे किया। तो मौजज़ा लेने के लिए सबसे बड़ी बात है अपने आप को नहीं देखना कि मैं गरीब घर से हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं अनपढ़ हूँ और मेरी तालीम नहीं है इतनी, और कुछ भी ऐसा जो आपको जो है मौजज़ा लेने से रोके। इस औरत को देख लीजिए और खुदा के कलाम को जानिए कि जहाँ जहाँ मौजज़ा हुआ, लोगों ने अपनी ज़ात को नहीं देखा, लोगों ने अपने आप को नहीं देखा, अपने मकाम को नहीं देखा, देखा किसको? खुदावंद यीशु को। जितने उस पर निगाह करते हैं वो ही मौजज़े को पाते हैं। और बड़ा मौजज़ा इसकी ज़िंदगी में हुआ कि कर्ज भी उतर गया और कितना इसको अच्छा लगा होगा। कैसे? क्योंकि इसने अपनी अकल इस्तेमाल नहीं की कि मुझसे कैसे हो सकता है, मैं बर्तन लाऊं और भरते जाएं, ये कैसे हो सकता है, ये कौन सा तेल है जो आसमान से आ जाएगा? आता है, आजमा कर देखिए, सब कुछ आसमान से ही आता है। हम खुदा के कलाम के लिए शुक्र करते हैं कि खुदा का कलाम सब कुछ कर सकता है। तो आज आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम हो, कोई ऐसी बात हो, तो याद कीजिए कोई चलो ऐसा ही काम हो जो हिस्केल की किताब में लिखा हुआ है 37 में कि वो जो सूखी हुई हड्डियों की वादी में जो है उसको, नबी को, उस खुदा के बंदा को जो खुदा ले गया और उसने कहा कि मुझे रूह में ले गया, मुझे कहा इसके चौगिर्द फिरा। क्यों उसके चौगिर्द फिरा? इसलिए कि अच्छी तरह से देख ले, हमारा जैसा कोई इंसान हो तो भी वो भी हमारी तरह इंसान का अच्छी तरह देख ले ये कितनी सूखी हुई है, ऐसी जैसे राख है, ऐसी जैसे इनका कोई सुरमा बन जाए किसी चीज़ का, ऐसी है उसका। अच्छी उसने साफ लिखा है खुदा के कलाम के, उसके चौगिर्द घुमाया, चारों तरफ उसको अच्छी तरह से घुमा लिया कि ये ना कहना कि फेक है, क्योंकि खुदा कर सकता है। और वहाँ पर क्या कहा? खामोश नहीं रहना, और वहाँ कहा कि बोल, नबूवत कर, तो ये हो सकता है, ये ज़िंदा हो सकती हैं। और जब उससे पूछा गया था ना कि बता क्या ये ज़िंदा हो सकती है, उसने कहा तू जानता है खुदावंद, ऐसे ही करना है आपने हर बात में, हर काम में। जब कभी आपका कोई ऐसा काम आ जाए कि यहाँ तक नौबत पहुँच जाए, तो आपने फिर यही कहना है तू जानता है खुदावंद, तू कर सकता है खुदावंद, तेरी कुदरत बड़ी है खुदावंद, तेरे कलाम में हमने सीखा है कि तू सब चीज़ों को नया बना देता है। तो हमने वहाँ पर देखा कि जब उसने नबूवत की तो वहाँ पर एक शोर हुआ और भूचाल जैसी वहाँ पर हालत आ गई, और लिखा कि हर हड्डी अपनी हड्डी से जा मिली। कैसे? खुदा के कलाम से। तो चुप नहीं रहना, चुप रहने से मसले हल नहीं होंगे। और ये बेवा क्या छुप गई कि कहीं छुप जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं? नहीं, इसने ये नहीं कहा कि हमारा अब कोई बड़ा नहीं है, अब मेरा शौहर भी चला गया, बच्चे छोटे हैं, हम बेबस हैं, लाचार हैं। नहीं, ये खामोश नहीं रही, ये भागी है, खुदा के बंदा से, एलीशा से फरियाद करके कहने लगी कि तेरा खादम जो खुदा से डरता था, हम जो खुदा से डरने वाले हैं, खुदा उनके साथ है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है और उनके लिए सब कुछ को नया बना देता है। तो वो उन हड्डियों की जो हम बात कर रहे हैं कि वो सूखी हड्डियों को कैसे ज़िंदा किया, वो जब उस पर कलाम बोला गया, जब नबूवत की गई। क्या नबूवत की गई? सूखी हड्डियों, खुदावंद फरमाता है खुदा का कलाम सुनो और जी उठो। तो तब उनमें शोर हुआ। जब आप अपनी ज़िंदगियों पर, अपने घरानों पर, अपने बच्चों पर, अपने बिजनेस पर, और कोई भी ऐसी चीज़ है जो ऐसी ख़त्म हो गई है कि अब कोई जवाब, कोई सवाल करने की ताकत भी नहीं रही, तो खुदा का कलाम कर सकता है।
खुदावंद तब्दीली चाहते हैं तो देखिए ज़कई की ज़िंदगी में जब यीशु आ गया तो तब्दीली आई। जब रसूलों की ज़िंदगी में पतरस, यूहन्ना, पालूस, जिसकी ज़िंदगी में यीशु आया तब्दीली आ गई। हमें कहीं पर कमज़ोर हैं, कहीं पर कम हैं, कहीं पर हम महदूद रहे हैं, हम बढ़ नहीं सके, हम जो है अपने आप को कहीं पर भी हम ऐसा समझते हैं। तो हमें इतना जानना है कि हमें दुश्मन की तासीरों से नहीं डरना, हमें हुकूमत वालों से नहीं डरना, हमें ये नहीं देखना कि हुकूमत आएगी तब्दीली होगी। तब्दीली तो खुदा के कलाम से है। तब्दीली तो कहाँ से है? वो बताता है कि वो जो तख्त पर बैठा हुआ है वो ये कहता है कि मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। और फिर वो कॉल करके कहता है कि मैं अल्फ़ा ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा, मैं प्यासे से, वो कहता है कि मैं आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। ज़िंदगी एक बड़ी नेमत है और ज़िंदगी को पाना चाहते हैं। बड़े बड़े बादशाह जिनके पास सोने चांदी की, हीरे जवाहरात की, ख़जानों की कुछ कमी नहीं है, लेकिन ज़िंदगी के लिए वो भी मोहताज है। तो कैसी बड़ी बरकत है। बाकी सब कुछ तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, लेकिन अगर ज़िंदगी लेनी है तो खुदावंद यीशु के पास ही वो कॉल कर रहा है कि आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई खर्चा नहीं है आपका, कोई वक्त नहीं है, वो हर वक्त में आपके लिए तैयार है। और वो कि ये फरमाता है, वो जो तख्त पर बैठा है वो ये फरमाता है, देखो मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। तो नया बनाने की कुदरत हमारे खुदावंद यीशु के पास है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी फरमाबरदारी से खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। जितने उस आला नाम को जपते हैं वो सारे ऐसे बड़े बड़े मौजज़ों को पाते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। आमीन।